The journey to crack judicial examination is both challenging and rewarding endeavor that demands a well-structured approach combining long-term perseverance with a short-term precision. Aspiring to join the judiciary is merely not about passing an exam. It is about preparing for a lifelong commitment to uphold justice and integrity. Long term goals, such as focusing on long term strong foundation, to the consistent study, mastering core legal concepts, and staying updated with the current legal developments is very important. On the other hand, the short term goals emphasize effective time management, strategic revision, and targeted preparation for specific aspects of the exam, such as the prelims, mains, and interviews. By maintaining a balance between all these goals, the aspirants can cultivate a discipline, knowledge, and confidence required to excel. The key lies in unwavering dedication, adaptability, and the clear vision for a greater purpose behind pursuing the judicial career. That is, making a meaningful contribution to society through the rule of law. Now let's look on to the tips which help in cracking judicial examination, that is, the long term and short term goals. Extent of hard work that you need to put in must be something different. A person who wishes to join Indian Army, generally they or such kinds of people are having, the high josh, the high courage, the high commitment, but they have to fight in front of the people. And once the person who is joining the legal and judicial system will be fighting to everyone, because it is to ensure that judiciary is independence and it is working independently. It is one of the toughest jobs in this country. And therefore, if you have decided to serve the judicial services of any state, you must have made up your mind that you are going to fight with the people without using any weapon. You are going to fight with the system without using any weapon. You are going to fight with the government without using any weapon. And therefore, the clarity in your mind, the commitment in your behavior, and the fineness in your work should be of utmost priority. And you should always concentrate yourself such special that you have courage to work 24 cross 7. This is the basic line which I generally say, because I think that candidates, those who are coming to the judicial services, they are in present days somewhere lacking in their college life, somewhere lacking in their college legal life, I would say. The college for legal graduates must be different of normal graduates. The normal graduates simply takes the degree, but legal graduates takes the degree, and together with the degree, they decide to serve the nation. Even if you do not become a judicial officer or somebody, those who have been graduated in legal stream, they do, if they do choose the joining advocacy only, and suppose judicial service is not their priority, even for such candidate, they must have some kinds of legal analytical mind. They must have some kind of high level commitment, and they should aspire to dedicate themselves for a bunch of hard work. Because in advocacy also, the there are two sides. On one side everything is goody goody, and on a second side everything is rough and tough. You see the infrastructure of the courts, you see the facilities for the lawyers, you see the challenges of financial nature for the lawyers, those who are coming as a first generation lawyer. But on the other side, you see the Nani Palkhiwala, you see the Soli Sorabji, you see the Rohinton Nariman, you see the Falias Nariman, you see the 50 and 52 chief justices of this country, those who had led the different careers, the different stages of career, rather, I would say. So the tempo of this profession is slightly different. If you have been graduated in legal studies and you have not made yourself the legal person, please make yourself legal person first. This is the first criteria that you should understand.
You should think differently from all other people, irrespective that what profession other people are joining. Somebody might be joining bureaucracy, somebody might be joining armed forces, somebody might be joining engineering services, and somebody joining corporates. Some are aspire to become advocates. But if you aspire to become a judicial service officer, you must think very, very, very differently. You must remain smartest, not smarter. You must remain committed to your professional standard. You must remain to choose the most effective words from your mouth. It should not be a generalized conduct if you aspire to become a judicial service officer. So these are the basic things which is required essentially if you aspire to become the judicial officer. This is the first part which I wanted to convey you all. The Do we have anybody those who do not understand the Hindi in this lecture or in this session? I would say, do we have any person those who are not comfortable with Hindi if I speak so? May I convert myself into Hindi for some of the stages of this session? जितने लोग हैं हम लोग हिंदी समझ रहे हैं ना? हाँ जी। कोई ऐसा तो नहीं कि जिसको हिंदी से दिक्कत है, तो मैं फिर इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर दूंगा, है ना? जहां आपको नहीं बात समझ में आएगी आप बोलिएगा, तो मैं आपको इंग्लिश में सर्व कर दूंगा, ठीक है? अब आगे की बात जो है वो बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये सेशन जो है वो इस बात के लिए डेडिकेटेड है कि आपका जो पूरा प्रिपरेटरी करियर है यहाँ पे वो कैसे चलेगा और आपको इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ठीक है? तो इसमें मैं आपको तीन चार स्टेज में इसको बांट देता हूं। एक तो ये कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दूसरा नोट्स मेकिंग वाला एक पार्ट होगा, तीसरा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स के बारे में मैं बता दूंगा, और कुछ एमसीक्यूज और जो आगे की फिर प्लानिंग होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जितने लोग हमारे साथ हैं इनमें से कुछ लोग होता है कि लॉ ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके होंगे, 5 ईयर या 3 ईयर डिग्री, लॉ डिग्री। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो परस्यू कर रहे होंगे और लेटर स्टेज में होंगे इस डिग्री के, ठीक है? अब आप इस स्टेज पे डिसाइड डिसाइड कर लिए कि आपको जुडिशियल सर्विस के करियर में जाना है प्रिफरेबली। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कई बार लोग कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो एडवोकेट बनने का भी उनका टारगेट है, तो उनको लगता है कि एक बार अगर प्रिपरेशन कर ली जाए तो कुछ अच्छा सीख लेंगे और फिर अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर ऐसा भी किसी का इंटेंशन है तो वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आप सब ये जानते होंगे कि ये एग्जाम जो है नॉर्मली 3 स्टेज का होता है: प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, ठीक है? सारे स्टेट्स इस एग्जामिनेशन को अलग अलग कंडक्ट करते हैं, आपको ये भी पता होगा। जितने स्टेट्स इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं उनके भी कंडक्ट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक? कुछ जगहों पे, कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट्स में जुडिशल सर्विस के एग्जामिनेशन को पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है, और कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट्स में जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन को हाई कोर्ट कंडक्ट करती है, ठीक है? जैसे हम अगर शुरू करें तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें अगर, चूंकि वहां नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा हैं, वैकेंसीज कॉम्परेटिवली ज्यादा आती हैं, तो इसलिए वो अट्रैक्टिव लोकेशन है, प्रमोशन और करियर भी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं सामान्यतः उसी का एग्जांपल ले रहा हूं सबसे पहले। अब उत्तर प्रदेश में जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन जो है वो यूपीपीएससी, जैसा मैंने कहा कि कुछ जगहों पर पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती है। 3 स्टेज का एग्जाम होता है: प्रिलिमिनरी, मेंस और एग्जामिनेशन, इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, माने आंसर्स लिखना पड़ता है,
और इंटरव्यू ओरल होता है, ये आपको मालूम। इसी प्रकार से अगर मैं एक दूसरे राज्य का उदाहरण अगर दूं, तो बिहार की मैं बात करता हूं, यहाँ भी वैकेंसी ज्यादा आती हैं। और बिहार में भी इस एग्जाम को पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है। वहां भी प्री मेंस और इंटरव्यू होते हैं, सिलेबस यूपी से थोड़ा अलग है। मैं दिल्ली की अगर बात करूं, तो दिल्ली में हाई कोर्ट इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। दिल्ली चूंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है, फुल स्टेटहुड नहीं है दिल्ली के पास, और वहां पर अपना पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। तो उस दशा में इसको कौन कंडक्ट करता है दिल्ली में? दिल्ली में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। वहां भी एग्जाम के 3 लेवल होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। और उसके बाद मैं अगर हरियाणा की बात करूं, मैं पंजाब की बात करूं, इसके अलावा साउथ में भी है, कुछ लोग साउथ से भी हो सकता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इवन पांडिचेरी का तमिलनाडु के साथ होता है। उसके बाद त्रिपुरा में मैं बात करूं, झारखंड में बात करूं, राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है, वहां पर भी रेगुलर वैकेंसीज आती हैं। तो इन सभी राज्यों में कहीं पर आप हाई कोर्ट को पाएंगे एग्जाम कराते हुए, और कहीं पर पाएंगे पब्लिक सर्विस कमीशन की। एज अ कैंडिडेट हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज अ कैंडिडेट एग्जाम क्वालिफाई करने के पर्पज से हमें इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एग्जाम को हाई कोर्ट कंडक्ट करा रही है या एग्जाम को पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करा रही है। सिर्फ जानकारी का मसला है और कोई बात नहीं, ठीक है। बस ये अंतर पड़ता है कि जहां पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है, वहां इंटरव्यू में पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स भी होंगे और हाई कोर्ट कंसर्न्ड के ऑनरेबल जजेस भी होंगे। और जहां हाई कोर्ट करा रही है, वहां वहां पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको जान लेनी है। और इसके बाद तो उसका थोड़ा अपना सिग्निफिकेंस भी बदल जाता है, इंटरव्यू की जो सिचुएशन है वो थोड़ी अलग अलग हो जाती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जब ये 3 स्टेज का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की बात है, तो जब आप तैयारी करने आते हो, तो एक बात आपको तो ये पता है कि अल्टीमेट टारगेट आपका क्या है, कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, आप एक जज बन जाइए। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कैंडिडेट के रूप में कि प्री में हमारा कितना नंबर आता है, मेंस में हमारा कितना नंबर आता है, इंटरव्यू में हमारा कितना नंबर आता है। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इससे बड़ा मसला मेरे हिसाब से ये है कि हमारा टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि हमें फाइनल लिस्ट जो सिलेक्शन की मिलेगी उसमें हमारा नाम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए सबसे जरूरी बात है। अब जब उस लिस्ट में हमें नाम चाहिए, तो एक बच्चा भी इस बात को समझ जाएगा कि हमें प्री भी पास करना है, मेंस भी पास करना है, इंटरव्यू भी पास करना है, और तीनों स्टेज में हमको इतने मार्क्स मिल जाएं कि हम पास करने के साथ साथ मेरिट लिस्ट में सिक्योर्ड पोजीशन पे रहें, ताकि हमें कोई रिस्क ना रहे, ठीक। अब जितने जुडिशल सर्विस अलग अलग राज्यों में एग्जाम हो रहे हैं, इनमें जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मीनिंग क्या हुआ? क्वालिफाइंग का मीनिंग यह हुआ कि मेंस एग्जामिनेशन में कौन कौन लोग अपीयर करेंगे, इस बात को डिसाइड करने के लिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको प्री बोलते हो आप, वो कंडक्ट किया जाता है। अब प्री एग्जामिनेशन जो लोग पास कर गए, उसके बाद उनको जो है उस मार्क्स को, प्री में कितना नंबर पाए, उस मार्क्स की कोई भूमिका नहीं है, उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। जो प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू जहां आते हैं, उस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद उस मार्क्स की कोई रोल नहीं है, उस मार्क्स की भूमिका खत्म हो जाती है। फिर आप आते हो मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में आप सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते हैं, वहां नेगेटिव मार्किंग का कोई सवाल नहीं होता है। और जो नंबर आप पाते हैं, उस नंबर के आधार पर आप अगर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हो, तो फिर आपके साथ क्या होगा कि आप इंटरव्यू में जो नंबर पाएंगे और मेंस एग्जामिनेशन में जो नंबर पाएंगे, इन दोनों नंबर को जोड़ दिया जाता है। मेंस एग्जामिनेशन में आप जो मार्क्स अचीव करते हैं और आप इंटरव्यू में जो मार्क्स अचीव करते हैं, इन दोनों मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है।
और इन दोनों मार्क्स की फाइनल मेरिट बनती है, और उसमें आपकी मेरिट में जहां कहीं भी पोजीशन आएगी, उस पोजीशन के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो यानी कि प्री को क्वालिफाई करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप प्री नहीं क्वालिफाई करोगे तो आप मेंस में पहुंचोगे नहीं। तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां तक चाहिए, कि हमारा प्री में सर्टेन क्वेश्चन, सर्टेन सिलेक्शन हमारा हो जाए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और मेंस में हमारे पास ये टारगेट होना चाहिए कि हमारा सिर्फ ऐसा ना हो कि मैं मेंस पास करूं, मेंस में इतना मैक्सिमम नंबर मेरे पास आए कि इंटरव्यू का कोई प्रेशर मेरे ऊपर ना रहे, इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स भी मेरे को मिले, तो मेंस में अगर मार्क्स ज्यादा रहेगा तो उस दोनों को ऐड कर देंगे, तो मेरिट में पोजीशन मेरी बन जाएगी। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट और एग्जामिनेशन स्टेज हो गए। एक यहीं बीच में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट सलाह ये देता हूं कि आप जब कभी भी सिलेबस डाउनलोड कीजिए, ठीक है, जब कभी भी सिलेबस डाउनलोड कीजिए, ये मैं जानता हूं कि किताबों में, बुक्स में, स्टडी मटेरियल्स में बहुत आसानी से सिलेबस अवेलेबल है, और आप जो बुक्स वगैरह खरीदते हैं उसमें आपको सिलेबस मिल जाता है। ठीक है। लेकिन मेरी सलाह ये होती है कि भरसक जहां तक संभव हो, आप जब भी तैयारी शुरू करते हैं तो आप क्या करिए कि हर स्टेट का सिलेबस आजकल ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उसके ऑथेंटिक वेबसाइट से जरूर डाउनलोड करें। जैसे मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश जुडिशरी का एग्जाम देना है, तो आप एक बार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अब उत्तर प्रदेश में एग्जाम कौन कराता है, पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, तो वहां आप पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके जुडिशियल सर्विस का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करें। बिहार की बात करेंगे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी। दिल्ली की बात करेंगे तो वहां कौन करा रहा है, हाई कोर्ट करा रही है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है। और एडवर्टीजमेंट से आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपको जो सिलेबस है वो एक सेकंड जरा सा, कोई मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है फोन करके, मैं जरा साइलेंट करना चाहता हूँ। हाँ जी, सॉरी। हाई कोर्ट जहां एग्जाम कराती है वहां हाई कोर्ट की वेबसाइट से आपको सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए। अब क्या है कि आप 25 राज्य का सिलेबस डाउनलोड करके करेंगे क्या, ऐसा तो करना नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपना एक टारगेट स्टेट बनाना चाहिए, कम से कम 3। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हरियाणा का रहने वाला है, तो उसको हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, ये बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, राजस्थान, तो वो इन जगहों में से अपना टारगेट बना सकता है। कोई दिल्ली का है तो उसके लिए यूपी बहुत कंफर्टेबल है, उसके लिए राजस्थान बहुत कंफर्टेबल है, उसके लिए हरियाणा बहुत कंफर्टेबल है, उसके लिए पंजाब बहुत कंफर्टेबल है, उत्तराखंड उसके लिए बहुत कंफर्टेबल है। इन सब जगहों पे वो कवरेज करेगा। एमपी भी कोई बहुत डिसकंफर्टेबल नहीं है दिल्ली वालों के लिए। ठीक है। और आज के जमाने में तो बहुत मुझे अच्छा लगता है देख करके कि एक टाइम होता था कि कोई अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी से बिलोंग करता है और दिल्ली का रहने वाला है, तो वो भरसक कोशिश करता था कि भाई मेरा कहीं बहुत फार्दर सिलेक्शन होगा तो मैं नहीं जाऊंगा, और वो कोशिश करता था कि उसका दिल्ली में या उसके पास सिलेक्शन हो जाए। आज के जमाने में अब ऐसा नहीं होता है। अब लोग क्या करते हैं, अब लोग कहीं भी चले जाते हैं। अब सिलेक्शन होने से मतलब है, ठीक है, इसका मतलब सर्विस की डिमांड बहुत बढ़ गई है। ठीक है। तो आप इस बात को समझ लीजिए। अब मैं जो प्रिपरेशन का बेसिक टिप्स है वो इस लेवल पे इसलिए दे रहा हूं, कोई भी फालतू बात करने से मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं होना है। कोई बढ़ा चढ़ा करके बात, कोई पैकेज वाली बात करना, ये आपको मदद नहीं करने पाएगी। अगर ट्रू ट्रेनर मैं हूं तो मुझे लगता है कि एकदम काम की बात बता देना और आप उसको ही फॉलो कर जाइए, आपको सिलेक्शन में कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है। तो मैं एकदम टू द पॉइंट एक स्ट्रेटजी अभी आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जब अभी कोर्सेज हमारे यहाँ करेंगे तो आपको कौन सी चीज किस वे में तैयार करनी है, इसकी आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है। तो आप क्या करो इसको, अब आप देखिए ध्यान से। प्री एग्जामिनेशन पास करने की सबसे कॉमन और सबसे बेसिक स्ट्रेटजी ये है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्री एग्जामिनेशन पास करने की सबसे कॉमन और सबसे बेसिक स्ट्रेटजी ये है
कि आपको बेयर एक्ट को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। ठीक है। प्री एग्जामिनेशन की किसी भी जुडी स्टेट के जुडिशियल सर्विस के लॉ के पेपर में आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, वहां के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बेयर एक्ट है उसको आपको पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। 50% क्वेश्चंस, 60% क्वेश्चंस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लॉ के ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बेयर से सॉल्व किए जा सकते हैं। डायरेक्ट, आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं करना है, रट्टा लगाने आना चाहिए। ठीक है। अब ये जो आप प्रिलिमिनरी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो, इसमें कई जगहों पर जीएस का या जीके का एक दूसरा पेपर है, और कई जगहों पर एक ही पेपर में दोनों चीजें आती हैं। जीके और जीएस की तैयारी बिल्कुल अलग होती है। अभी फिलहाल हम उस पर कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम लॉ पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि हम लोग जीके के बारे में कुछ बेसिक सजेशन आपको जरूर दे सकते हैं कि आप कैसे उसकी तैयारी करो। ठीक है। तो ये हो गई आपके ऑब्जेक्टिव की बात। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फैक्चुअल चीजों पे कंसंट्रेशन करना चाहिए, प्रीवियस ईयर को बार बार लगाना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने का मीनिंग ये नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दोबारा मिल जाएंगे। दोबारा मिल भी सकते हैं, लेकिन टारगेट ये नहीं होता। टारगेट ये होता है कि क्वेश्चन का आपको बेसिस समझ में आता है, कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा तो वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे उठेगा, ये आपको बात समझ में आ जाती है। तो जब आप 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन लगा लेते हो, तो आपको क्वेश्चन का मैक्सिमम फोकस मालूम चल जाता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर लगाना चाहिए। और वो रिपीट होगा तो बहुत अच्छी बात है, उसका बेनिफिट सारे लोग लेंगे जो लोग लगाए होंगे। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, प्री का आप क्या आपको याद रखना है, रीड बेयर वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, एज पर दी सिलेबस। ठीक है। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की जगह 3 नए कानून आ गए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। आप ये जानते हो। तो ये तीनों कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन, ये चीज तो हर जगह आना ही आना है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसकी रीडिंग तो आप बिना मतलब किसी मार्गदर्शन के भी आप लगाना शुरू कर दो। आप इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना शुरू कर दो। मेंस के लिए जो मैं अभी तक कॉमन और बेसिक स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ वो ये बताता हूँ। जैसे मान लो कि तुमको अगर ऐसा लग रहा है मेरे से बात करके कि मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूं, या मुझे तो बहुत आता होगा, या मान लो सारा आता होगा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। मुझे किसी जुडिशियल सर्विस के मेंस एग्जाम में बैठाओ, उधर जो बंदा कॉपी चेक करेगा, एग्जामिनर जो होगा, वो मुझे नहीं जानता है, वो मेरा फेस नहीं जानता है, मेरा ज्ञान नहीं जानता है। ठीक। वो मुझे कैसे जानेगा? जो चीज मैं कॉपी में लिख के जमा कर दूंगा, वो बस उतने से ही जानता है। हो सकता है कि आपको मुझसे बात करके लगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है, लेकिन इसकी हकीकत एग्जाम में जब जाती है तो हम आप सब लोग बराबर हो जाते हैं। आप भी एग्जाम दो और मुझे भी बैठा दो अपने साथ, मैं आपको सारे प्रोविजन हो सकता है बिना बुक के पढ़ा दूं, लेकिन एग्जाम में बैठने में क्या है कि उस एग्जामिनेशन का प्रेशर और जो क्वेश्चन आते हैं उसको आंसर करने का उस समय दिमाग में जो तरीका आता है ना। मान लीजिए आपसे एक एक बहुत फालतू सा सवाल ले रहा हूं एग्जाम्पल देने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये पूछा गया। अब ये मुझसे अभी पूछोगे, और मैं जो आंसर करूंगा, मेरे पास सोचने का टाइम है, मैं सोचूंगा, उस पर फ्रेम कर लूंगा और फिर मैं बोलूंगा। और मैं एक एग्जाम में बैठा हूं और अचानक से मैंने क्वेश्चन देखा, उसमें पूछा है भारत के प्रधानमंत्री की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। वहां उस एग्जामिनेशन प्रेशर में जो मैं सोच करके डिलीवर करूंगा, वो अभी मैं जो डिलीवर करूंगा इससे अलग होगा। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है इस डिस्कशन में? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे को कितना आता है इस बात से एग्जामिनर बिल्कुल परिचित नहीं है। एग्जामिनर मुझसे परिचित होगा सिर्फ मेरी कॉपी देख करके। इसका मतलब कि तुमको अपने ऊपर जितना भी घमंड है कि मुझे बहुत आता है, अगर आता भी है, तो उसका मार्क्स पाने का एक ही तरीका है कि आपको वो सारा चीज कॉपी में लिख के आना पड़ेगा जो आप जानते हो, और क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिक पूछा जाता है। ये बात कैसे बनेगी भाई? ये बात का दोस्तों मैं कह रहा हूं, आप इसको लिख लो कागज में कहीं,
आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद आप मुझे याद करोगे। इसका एक ही तरीका है, राइटिंग प्रैक्टिस। कंटेंट को पढ़ना, याद करना, ये सब दूसरा काम है। और कंटेंट को याद करके लिख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेंस में नंबर स्कोर करने के लिए। प्री की स्ट्रेटजी मैंने क्या बताई? बेयर पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, बार बार पढ़ना है। एक बार बेयर शुरू किया, सेक्शन 1 से लास्ट तक पढ़ा, खत्म हो गया, फिर पढ़ने लगे उसको। फिर खत्म हो गया, फिर पढ़ने लगे उसको। 3 3 4 4 बार तो मिनिमम पढ़ना है कोई भी बेयर। और स्पीड में पढ़ना है ताकि जल्दी खत्म हो जाए। आप पहली बार में ये मत सोचो कि आपको याद नहीं हो रहा है। नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन स्ट्रेटजी वो है। मेंस की स्ट्रेटजी मैंने आपको क्या बताई? राइटिंग प्रैक्टिस। आपने मुझसे पूछा व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने कह दिया एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉपी में मैं लिखूंगा तो एनफोर्सिबिलिटी को मैं लिखूंगा कि वो सेक्शन 10 में है। एक कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा सेक्शन 2H में है। और सेक्शन 2H पे पहुंचने के लिए सेक्शन 2A से लेकर के और उसके पीछे तक के सारे एलिजिबिलिटीज को फुलफिल करना है। अब इस सब का पिक्टोरियल डायग्राम बना करके मैं आंसर लिखूंगा। तो वहां क्या पहुंचना है, आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि वहां जो पहुंचना है वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस से आ सकता है। मैं चाहे जितना इंटेलिजेंट व्यक्ति हूं, अगर किसी क्वेश्चन के कंटेंट को मैंने 5 बार, 3 बार, 4 बार, 2 बार प्रैक्टिस नहीं की है लिख करके, तो एग्जाम में डायरेक्टली मैं कभी बेस्ट नहीं लिख पाऊंगा। मैं कभी बेस्ट नहीं लिख पाऊंगा। और मैं अगर अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा तो मुझे बेस्ट मार्क्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ये ये सजेशन किस बात की है? मेंस की। और इंटरव्यू की मेरी सजेशन दोस्तों क्या है? सिर्फ एक लाइन इसमें भी। क्या है वो? कभी भी तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेंस पास करने के बाद अगर करोगे तो तुमको दो चीजें बहुत परेशान करेंगी। पहला, तुम्हारा कॉन्फिडेंस फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा। क्यों? क्योंकि तुमको डर होगा कि वो पता नहीं क्या पूछ देगा। और दूसरा, तुम कभी भी अपना बेस्ट डिलीवरी ओरली नहीं कर पाओगे। तो इंटरव्यू की तैयारी कब से करनी है? इंटरव्यू की तैयारी आज से करनी है। आज से करनी है। आप मुझे बोलते हुए सुन रहे हो ना? आप असेसमेंट करना मेरा, मैंने क्या क्या बोला। और इस जुडिशियल सर्विस प्रिपरेशन स्कीम के बारे में मैं आपको समझाने में कितना कामयाब रहा। अगर मैं कामयाब 80% से ज्यादा हूं तो इसका मतलब मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। अगर मैं कामयाब 79% भी हूं, इसका मतलब मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है। यहां से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये कि जब कॉन्सेप्ट को क्लास में पढ़ाया जाए, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को दिमाग में उसी दिन बैठा लेना है, ताकि इंटरव्यू में जब सवाल हो तो आपको कुछ ज्यादा सोचना ना पड़े और आप बेसिक एलिमेंट हमेशा बता दें। एंड माइंड यू माय फ्रेंड्स, हमेशा इंटरव्यू में एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आप बेसिक आंसर बताइए। इंटरव्यू में आपसे कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं और ना ही आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर की उम्मीद होती है। बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक सवाल का इसेंशियल आंसर आपको देना है, आवश्यक, अति आवश्यक। जैसे उन्होंने पूछा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो आपको तुरंत एग्रीमेंट और एनफोर्सिएबिलिटी दोनों चीज बतानी है। उन्होंने आपसे पूछा कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट को तुरंत बताना है कि कंप्लेंट में सबसे पहली चीज कंप्लेनेंट और उसकी इंजरी होनी चाहिए। और उसके बाद उसको कौन सी इंजरी हुई है उसको ऑफेंस में फाल करना चाहिए। और कंप्लेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्लेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो। ठीक है। ये कंक्लूसिवनेस जब तक आपके अंदर नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाने वाला है। ठीक है। ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से आपको प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू के स्टेज पे बहुत मदद करने वाली है। ये तीनों बातें अगर आप समझ गए होंगे तो आप जान लीजिए कि आपकी तैयारी आज से ही शुरू हो गई। ठीक है। आप अगर इस कमिटमेंट पे चलेंगे, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपके लिए 1 साल अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत है।
एक साल में आप अपने आप को बहुत शानदार ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और भी मैं गंभीर बातें बताऊंगा, लेकिन ये मैंने वो आपको बताया है जिसको आप कह सकते हो कि ये पहला गुरु मंत्र है, अगर आप इसकी बात समझ गए होंगे तो। और इसके अलावा कुछ कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए और उसको कभी नहीं अवॉइड करना चाहिए। जैसे जब तक आप प्रिपरेशन के स्टेज में हो, खास करके वो लोग जो लोग अपना लीगल ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, उनके लिए मैं बता दूं, जिनको ये है कि अब जल्दी से मुझे नौकरी पानी है, बेटा आप अपना 1 मिनट मत खराब करना, और आप एक फेस्टिवल मत मनाना अगले 1 साल तक। घर में रहना, कहीं ज्यादा आना जाना मत, कहीं फालतू ट्रेवल मत करना। ठीक है। टाइम जाने आने में लैप्स नहीं होता है, जाने आने के पहले हमारा मेंटल बैलेंस जब गड़बड़ होता है ना, उसमें लैप्स होता है। और ये हमें पता चलता है 5 साल बाद। मैंने अपनी जिंदगी में जितना टाइम बेकार किया होगा, वो मुझे अभी 5 साल पहले मैंने जितना बेकार किया होगा वो मुझे पता होगा, आज वाला मुझे फिर भी नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो ये दूरदर्शिता आपको अपने अंदर लाने की जरूरत होगी। और तीसरी बात, कि जब कभी भी आप प्रिपरेशन के स्टेज में होते हैं, एक मिनिमम डेडिकेशन टाइम, MDT मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूँ, मिनिमम डेडिकेशन टाइम बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कमिट कर लिया कि मैं 2 घंटे तो जरूर पढ़ूंगा। अब आपकी जिंदगी में जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन 2 घंटे आप ना पढ़ो। आप अगर आप कमिटमेंट आवर आपने बना लिया कि जब मैं पढ़ूंगा तब तो मैं ज्यादा पढ़ूंगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी मेरा मन नहीं भी करेगा, तो उस दिन फॉर्मेलिटी के लिए भी मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। और उस फॉर्मेलिटी का मीनिंग ये होता है कि मान लो कि एक दौर में मुझे बुखार हो गया, फीवर आ गया, अब मैं कैसे पढूं, बैठा नहीं जा रहा है, मेडिसिन खा के कंबल में सो जाऊंगा, और जब भी थोड़ा सा फीवर उतरेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर पढ़ लूंगा फॉर्मेलिटी के नाम पे। ठीक है। क्योंकि वो इजी होगा, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होगा। लेकिन मैं सोए सोए अपनी फॉर्मेलिटी, कमिटमेंट क्या है कि मेरा जो मिनिमम स्टडी टाइम है डेली, वो कभी भी जो है स्किप नहीं होना चाहिए। कभी कोई बहुत विशिष्ट मजबूरी है तो उसकी बात अलग है। एक सेकंड जरा। हाँ जी, सॉरी। तो मैं कह रहा था कि आपको अपना कमिटमेंट टाइम एक बना लेना चाहिए। जब तक कोई रेयर मजबूरी ना आए, आप उस टाइम के साथ कोई समझौता नहीं कीजिए। ठीक है। और पूरे प्रिपरेशन में आपने जितनी पढ़ाई करी है, अगर आप उसका नोट्स बना करके उसको नोट नहीं करते हैं, इवन जैसे मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया, खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, खत्म हो गया, एक जगह आपको नोट करने आना चाहिए कि आपने कौन कौन सी चीज पढ़ ली है। लॉ में कुल 30 प्रकार के सब्जेक्ट आपको अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, स्टेट वाइज। तो जब आप अलग अलग जगहों की अलग अलग चीजें पढ़ते चले जाओगे, एक टाइम में आपको लगेगा कि यार कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक ना। तो जो नोटिंग होती है ना, वो कंटेंट तो जो आप पढ़ रहे हो उसको तो नोट करना ही करना है, मैंने क्या क्या पढ़ लिया इसकी इंडेक्सिंग, इसकी नोट्स भी होनी चाहिए। ठीक है। तो जो 1 2 3 नोटबुक आप अपनी बनाइए, वो नोटबुक ऐसी हो कि वो आपकी डायरी जैसी हो, कि आप उसको अपने से दूर नहीं रखोगे, आप उसको अपने पास रखो, और वो हमेशा आपके पास रहेगी। कुछ चीजें तो उसमें ऐसी आप पढ़ोगे कि जो जब आप नौकरी में चले जाओगे तब भी आपको कई बार एकेडमिक्स की जरूरत पड़ती है। तो वो नोट्स ऐसे होंगे जो उस समय भी आपको हेल्प करेंगे। है ना। तो ये चीजें हैं। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्री मेंस इंटरव्यू, प्री और मेंस के और इंटरव्यू वगैरह के सवाल हम लोग आपको बताएंगे। ये सब चीजें आपको देखने की जरूरत है। न्यूज़पेपर हर व्यक्ति को रोज पढ़ना चाहिए। आप भले ही ऑनलाइन एक्सेस लेके पढ़ो, लेकिन आपको एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए नेशनल लेवल का, डेली। और अच्छी कोई मैगजीन अगर आप पढ़ें कोई भी कंपटीशन से रिलेटेड, हर महीने एक, तो वो भी बहुत आपको हेल्प करेगी। करंट वगैरह की प्रिपरेशन आपकी ऐसे हो जाती है। ठीक है। तो मेरी तरफ से तो बेसिक गाइडेंस जो है यही है।
आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, या यहां तक कोई और पॉइंट लगता हो कि बहुत इलेबोरेट करने की जरूरत है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑल राइट। आप में से कोई व्यक्ति मुझे रफली बताना चाहेगा कि वो किस स्टेट को टारगेट कर रहे हैं? दिल्ली को टारगेट करने वाला कोई है? दिल्ली जुडिशियल सर्विस को? यूपी को टारगेट करने वाला? अच्छा, दिल्ली। नितिन, ओके। यूपी जुडिशियल सर्विस को टारगेट करने वाला कोई? नहीं। बिहार जुडिशियल सर्विस को टारगेट करने वाला कोई है? ओके, अब्दुल यूपी के लिए हैं। आफरीन वेस्ट बंगाल, यूपी और बिहार, वेरी गुड। अब देखिए, आफरीन में आपको वेस्ट बंगाल के बारे में बता दूं। आपको बंगाली लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए। बंगाली लिखना और पढ़ना दोनों अगर नहीं आता है तो आप वेस्ट बंगाल की प्रिपरेशन नहीं कीजिएगा। और अगर आता है तो आप जो है आपको, आप टच में रहिएगा, मैं आपको एक अटेम्प्ट में निकलवा दूंगा, है ना। एक अटेम्प्ट बंगाल का जुडिशियल सर्विस निकालने के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बंगाली लैंग्वेज अगर आती है तो। उसके बाद कुछ लोग यूपी और बिहार के जो कैंडिडेट हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस से आप कभी कोई समझौता मत कीजिएगा। आप कई बार सिलेक्शन के नजदीक जाके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद बोल रहा हूं। अगर यूपी और बिहार आपका टारगेट है तो यहाँ प्योर कंपटीशन होता है, यहाँ भीड़ जो है सबसे पॉलिश्ड किस्म की आती है। और यहाँ पर मेंस की राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। डे वन से प्रिपरेशन के आप राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देना, बाकी हम डिटेल गाइड करेंगे। झारखंड और दिल्ली के लिए मैं आपको बता दूं, झारखंड का स्टेटस, सिलेबस तक स्टिक अगर आप हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो झारखंड में आपको बहुत डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। प्री का स्टैंडर्ड अच्छा होता है झारखंड का, मेंस का स्टैंडर्ड बहुत एवरेज होता है। और दिल्ली जो है सबसे अलग एग्जाम है। दिल्ली पास करने के लिए आपको लॉ के साथ साथ लैंग्वेज भी अच्छी आनी चाहिए। अगर लैंग्वेज आपको अच्छी नहीं आती है तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस आप भूल जाइए। और पंजाब और हरियाणा में अगर आप सेफ चलना चाहते हैं, तो जैसे मान लो कि 50 सीट आती है ना, तो आप इतना बना के रखो कि आपकी रैंक 10 तक में आने का अगर आपके अंदर मादा है, तो आप हरियाणा और पंजाब में फ्री फाइट कर सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हो। और राजस्थान के लिए आपको कंक्लूसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के एग्जाम में किसी भी चीज के कंक्लूसिवनेस, कंक्लूसिव अप्रोच पे आपको आना बहुत जरूरी है, इवन इन इंटरव्यू। वो वहां के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकर? नो, नो एग्जाम इज इजीएस्ट इन दीज डेज, है ना अब्दुल। कोई एग्जाम इजीएस्ट नहीं है। किसमें आपका मेंटल बैलेंस सबसे अच्छा है, किस दौर में आप सबसे कम डिस्टर्ब हुए चीजों से, और किस दौर में आप सबसे अच्छा लिख के आ गए, बस वो एग्जाम आपके लिए इजीएस्ट होता है। कहीं का एग्जाम इजी नहीं है। मैंने बोला ना बंगाल के लिए कि मैं एक अटेम्प्ट में निकलवा दूंगा, लेकिन मैंने क्या बोला है, बंगाली लिखना पढ़ना नहीं आता होगा तो आप भूल जाओ, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अरुणाचल के लिए थोड़ा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। अरुणाचल के जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए थोड़ा सा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, मुझे टाइम दीजिए। मैं कुछ रिसर्च करके आपको बता दूंगा, है ना, कभी आप मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा, ठीक है। डिफिकल्टी इन चूजिंग स्टेट, डिफिकल्टी इन चूजिंग स्टेट इज नॉट, फर्स्ट टारगेट शुड बी द स्टेट विच यू बिलोंग टू, है ना। इफ यू आर बेसिकली फ्रॉम एक्स एंड वाई स्टेट, then you should prepare for X and Y. Secondly, your parents may be working somewhere.
Thirdly, you may be some replacement, displacement, relocation plan. Accordingly, you may choose the state. There is nothing about this, the strategy-based selection should not be there. It's only need-based. एमपी इज ऑल्सो कंक्लूसिव अप्रोच एग्जाम, आपको बहुत पढ़ने की जरूरत पड़ेगी एमपी में। तो आप बेहतर टाइम देना शुरू कर दीजिए। एमपी का एग्जाम ऐसा है कि आप मतलब कुछ और उसके साथ नहीं कर सकते, मुझे जहां तक लगता है। हालांकि मैंने तो यूपीएससी सिविल सर्विस का इंटरव्यू और जुडिशियल सर्विस का इंटरव्यू मैंने दोनों एक साथ दिए हैं 15 दिन के अंतर पे। अलग बात है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनली, बट मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, इसलिए आप ऐसा ट्रायल मत करो। कोई हमसे पूछ रहा है, इज इट नेसेसरी टू बी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बिफोर अपियरिंग इन द एग्जाम? देखो, अभी क्या है कि जुडिशियल सर्विस में जो ये लोअर जुडिशियल सर्विस है, पिछली बार तक ऐसा कहीं नहीं था कि आपको प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने की जरूरत है। लेकिन इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होने लगी है, जहां पर अभी तक दो कंडीशन है कि अगर लॉ ग्रेजुएशन में आपके 75% मार्क्स नहीं है, तो आपको एज एन एडवोकेट आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस का रिक्वायरमेंट है फिलहाल, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कह चुके हैं। तो इसका मतलब ये कि अब धीरे धीरे ये प्रैक्टिसिंग वाली बात भी आ रही है फोकस में। अभी फिलहाल सारे स्टेट्स में नहीं है, बट कुछ जगह शुरू हो गई है। तो सेफर साइड है कि आप जब लॉ ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं, तो आप अपना बार काउंसिल में एनरोलमेंट जरूर करा लीजिए एज एन एडवोकेट, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। राजस्थान के लिए मैंने आपको बताया था कि वहां के एग्जाम के लिए कंक्लूसिवनेस ज्यादा जरूरी होती है। और राजस्थान का लोकल जीके वगैरह जो है वो आपको प्री में मेंस में कुछ पेपर्स जो है उसमें हेल्प करता है। ठीक है। और बाकी जो लीगल पेपर्स हैं उसमें बहुत कंक्लूसिव पढ़ने की जरूरत है। राजस्थान और एमपी के जो पेपर्स होते हैं वो थोड़े डिटेल्ड किस्म के पेपर होते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली के बाद टफनेस जो है वो राजस्थान और एमपी में ही है। ठीक है। अगर आप लोकल कैंडिडेट हैं तो थोड़ा हो सकता है कि आपके लिए सिचुएशन बेटर रहे, लेकिन वो बेटर तभी होगी जब आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको लोकल होने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। अपनी ऊर्जा बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपनी ऊर्जा बनाए रखना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। योर एक्साइटमेंट लेवल मस्ट बी हाई। Your commitment towards the preparation should be of utmost priority, and you should have working on, mission mode, that you have committed yourself for this examination. Okay. So these are the advices from my side till now. सनारा का क्वेश्चन जो अरुणाचल जुडिशरी के बारे में है, इसको मैं किसी दिन आप क्लास में आओगे, मैं किसी न किसी क्लास में मिलूंगा, आपको रेस्पॉन्ड कर दूंगा। और नहीं, अगर कहीं मौका मिलेगा हमसे इंटरेक्शन का, तो आप हमको कांटेक्ट कर लेना इन लोगों से बात करके, एंड आई विल ब्रीफ यू अबाउट, है ना। और रीजनल जुडिशियल सर्विस के एग्जाम्स में ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। जैसे ये अरुणाचल का है, तो आई एम श्योर कि इसमें पार्टिसिपेंट्स बहुत कम होते होंगे। तो इसका मैं अगर एक बार पेपर और एडवर्टीजमेंट देख लूंगा, तो मैं इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा। और 6 से 8 महीना, अगर आप लॉ ग्रेजुएशन ऑलरेडी पास हो गए हो, तो आपको 6 से 8 महीना ज्यादा से ज्यादा लगेगा अरुणाचल जैसे एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है। मैं ब्रीफ करूंगा उसके बारे में। सीक्वेंस सब्जेक्ट लिस्ट प्लीज। सब्जेक्ट लिस्ट में देखो, मैंने अभी आपको एक लिस्ट बताई थी। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इनकी जगह 3 नए कानून आ गए हैं। 3 ये सब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा मोहम्मडन लॉ और हिंदू लॉ में मैरिज एक्ट और सक्सेशन और गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस, ये सारे जो हैं ये मोटा मोटी आपको कॉमनली कहीं ना कहीं मिलेंगे हर एग्जाम में। इसमें जूरिस्प्रूडेंस केवल एडिशनली ऐड होगा जब आप यूपी जुडिशरी का एग्जाम दोगे। ठीक है। और जब आप बिहार का दोगे तो जूरिस्प्रूडेंस उसमें से हट जाएगा। ये मोटा मोटी वो सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन है सारे स्टेट्स में। अब इसके बाद हर स्टेट का अपना लोकल लॉ होता है। जैसे यूपी में लोकल लॉ के नाम पे 5 लॉ है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। बिहार में लोकल लॉ के नाम पर एग्जाम में कोई लोकल लॉ नहीं आता है। दिल्ली में लोकल लॉ उनका एक अपना अलग से आता है। राजस्थान में लोकल लॉ उनका अपना अलग आता है, जिसमें वहां का रेवेन्यू सिस्टम वगैरह है।
तो ये मेरे कहने का मतलब कि जो लोकल लॉ है वो स्टेट वाइज आपको डिफर करेगा, तो उसको आपको स्टेट वाइज कवर करना पड़ेगा। इसीलिए आप जब दो तीन स्टेट टारगेट करेंगे तो उनके लोकल लॉस को पढ़ना पड़ेगा। और कुछ कुछ सब्जेक्ट की जो प्रायोरिटी है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, एक एक्ट है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट, ये आपको सिर्फ बिहार में मिलेगा। ट्रस्ट एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट आपको सिर्फ बिहार में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरह का हर स्टेट का कुछ ना कुछ अलग अलग तीन चार सब्जेक्ट का नोटेशन बदलता रहेगा। बाकी कॉमन सब्जेक्ट वही है जो मैंने आपको बता दिए, उनके बेयर्स ही मैंने आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट किया था। ठीक है। और कोई सवाल? सर न्यूज़पेपर आप लोग सेलेक्ट कर लो जी, बताइए। सर जेएन के और दिल्ली का क्या क्राइटेरिया है? देखिए, जेएनके के लिए आपको सबस्टांटिव और प्रोसीजरल लॉ पे अच्छी कमांड बनाने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वहां पे पहले जो लॉज थे वो अब चेंज हो गए हैं। तो आपको जैसे वहाँ आरपीसी वगैरह था, उसकी आरपीसी मतलब रंजीत पेनल कोड, उसकी जगह अब आप बीएनएस पढ़ेंगे, वहाँ भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस पढ़ेंगे। तो वहां पर पहले उन सब्जेक्ट्स का ना होना क्या है कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका नहीं देता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे बीएनएस पहले आपने अगर वहां कभी नहीं, आईपीसी आपने वहां कभी नहीं दिया, आरपीसी दिया, तो जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे वो आरपीसी के क्वेश्चंस कंसंट्रेट करते हैं खास करके। ऑब्जेक्टिव तो आप समझ सकते हो, मेंस में ज्यादा दिक्कत होती है। तो वहां थोड़ा जेएनके के लिए आपको जितने कोर लॉ पेपर्स हैं उनकी बहुत अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी। हम जब उनको पढ़ाएंगे तो हम बीच बीच में आपको, अगर आप जेएनके देना चाहते हो तो हम बीच बीच में आपको इंडिकेट कर देंगे कि कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा स्पेसिफिक है। और इसके अलावा जो सेकंड एस्पेक्ट है जेएनके के जुडिशियल सर्विस का, उसमें आपको लोकल लॉ वहाँ का पढ़ना पड़ेगा, जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं आपको फाइंड आउट करके जब आपको एग्जाम देना होगा, या थोड़ा अभी स्टडीज में थोड़ा सा आगे जब हम लोग चले जाएंगे, मैं आपको फाइंड आउट करके उसकी लिस्टिंग दे दूंगा और आपको उसमें स्ट्रक्चर्स बता दूंगा हाउ टू स्टडी दैट। ठीक है। और दिल्ली के लिए आपको मैंने क्या कहा था, लॉ का प्रैक्टिकल नॉलेज होने के साथ साथ दिल्ली जुडिशियल सर्विस जिसको पास करनी है उसको लैंग्वेज की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और लैंग्वेज की प्रैक्टिस दो लेवल पे, प्रिलिमिनरी में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को समझने में, और मेंस में क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने में। क्योंकि प्रिलिमिनरी में मैंने ऐसा देखा है बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स का लैंग्वेज ना समझ पाने की वजह से तीन तीन चार चार ऑब्जेक्टिव सवाल गलत हो जाते हैं। और जब आप फाइटिंग कैंडिडेट हो तो तीन ही चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गलत होंगे तो आप पीछे हट जाओगे मेरिट में। तो वहां दिल्ली की अगर प्रिपरेशन करनी है तो बेयर पे बहुत प्रैक्टिकल कमांड बनाने की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट वाइज जब हम डील करेंगे तो हम बीच बीच में उसके लिए भी आपको इंडिकेट करेंगे। बस ये है कि आप थोड़ा सा जब प्रिपरेशन में रहिएगा तो यू कैन जस्ट पिंग मी कि आप पर्टिकुलरली दिल्ली और जेएनके के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक गाइडेंस वुड बी प्रोवाइडेड। अलॉन्ग विथ यूपी विच आर द स्टेट्स वी कैन फोकस अपॉन? जितने लोग हिंदी स्पीकिंग हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, इतना उनके लिए कॉमन है। इतने में सारे हिंदी भाषी क्षेत्र आ जाएंगे, आप एग्जाम दे सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। बिनीश, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? हैव आई आंसर्ड यू और यस डू सर, यू? आई एम सेटिस्फाइड। ऑलराइट, गुड. And till then, you can do one thing, that you just try to download the advertisement of just previous examination of J&K Judicial Service. That will help you in understanding the recent structure of the examination. Hmm. ओके सर। Yes. Which university you are undergoing for your law graduation? सर कश्मीर यूनिवर्सिटी केयू। Very good, very good. So in the department itself, main campus. सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम एफिलेटेड कॉलेज, आई एम स्टडिंग थ्रू एफिलिएशन कॉलेज। All right, no problem. And is it 3-year degree program or 5-year law? 5 year। I'm in 10th semester। Okay, so you will be passing out in May, June 2025. यस सर। Great, great. I'll just help you out. No worries.
Thank you, sir. Okay, guys and girls, any other question? No? All done? और ये तो क्या होता है कि सिलसिले जो हैं वो ऐसे खत्म नहीं होते कभी। और कभी ऐसा नहीं होता कि पहली मुलाकात ही इतनी बढ़िया हो जाए कि सब उसी में हो जाए। तो मुझे लगता है कि इस पे वक्त देने की ज़रूरत है। और आप बिल्कुल घबराएं नहीं, ये तो शुरुआत करने की बात है। और आपकी तरफ से मुझे बस आपका कमिटमेंट चाहिए। मेरी तरफ से वो सब कुछ मिलेगा जो एग्जाम में ज़रूरत है। अगर आपका कमिटमेंट मैं पहचान गया तो मेरी तरफ से वो सब कुछ मिलेगा जो एग्जाम में आपको चाहिए। और फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। जुडिशियल सर्विस से ज्यादा एस्पायरिंग कोई सर्विस नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस से भी ज्यादा मैं समझता हूं कि अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे आप देखिए, एक व्यक्ति को मरने से अगर आपने बचा दिया तो ये तो जरूर ऐसा है कि भाई ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन आप ये सोचो कि एक व्यक्ति को आपने मरने से बचा दिया और उसको रोटी कपड़ा मकान नसीब नहीं करवा पाए, तो ये हमारा फेल्योर है एज अ कंट्री। हम उसको पीसफुल इन्वायरमेंट अगर नहीं दे पाए तो ये हमारा फेल्योर है एज अ कंट्री। है ना? तो इसलिए हमें क्या करना है कि जस्टिस को, पीस को और व्यक्तियों के बेसिक राइट्स को, इसको सर्व करने वाले लोग हम लोग हैं। चाहे हम लॉ पढ़ाने का काम करते हो, चाहे हम लॉ प्रैक्टिस करते हो, और चाहे हम जुडिशियल सर्विस में आकर के लॉ को डिसाइड करते हो। तो ये मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि ये आर्म्ड फोर्सेस में, भाई किसी नेशन में सबसे ज्यादा लोग प्राइड करते हैं उस देश की आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करने का, कि इस देश के आत्मसम्मान, इस देश के सम्मान की रक्षा के लिए हम हैं। बहुत अच्छी बात है और सलाम है फोर्सेस के लोगों को। लेकिन हम कंट्री के अंदर रह करके और कंट्री के लोगों को और इवन उन फोर्स के लोगों को, फोर्स के भी जो लोग हैं उनको भी तो जस्टिस चाहिए किसी न किसी लेवल पे। या उनको समझ होनी चाहिए जस्टिस की, अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे कहीं भी पब्लिक के बीच में। तो ये हमारा काम जो है ना, ये बहुत सेंसिटिव है। हमारा एक गलत डिसीजन किसी जिंदा व्यक्ति के अधिकार को खराब कर सकता है, और ताउम्र उसके जिंदगी में कष्ट, उसके दुख का कारण हम बन सकते हैं अगर हमारी समझ सेंसिटिव नहीं है तो। और हम जब सेंसिटिव हैं तो हम एक व्यक्ति को जिंदगी से भी ज्यादा कुछ दे सकते हैं। जिंदगी से ज्यादा क्या हो सकता है? जिंदगी में खुशी। जिंदगी तो सबकी मिली है, खुदा ने दी है और ये रहेगी जब तक उन्होंने दी है। लेकिन जिंदगी में खुशी देना जो है ना, आपका हमारा काम है। आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूं। आप आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं। हम सोसाइटी में एक दूसरे को दे सकते हैं। तो जिंदगी तो ऊपर वाले को देनी थी, उसने दे दी। जब तक लिखी होगी तब तक रहेंगे। लेकिन जिंदगी में खुशी देना आपका काम है, जस्टिस वालों का काम है। ठीक है? तो इस हिसाब से आप अपना हाई कमिटमेंट बना करके और पढ़ने का खूब पालिए, और न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। और किसी भी चीज में एक और बात मैं सजेस्ट करना चाहता हूं, जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको अपने आप को डिस्टरबेंस से बचाना होता है। तो आप क्या करिए कि ऐसे किसी भी जगह आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट मत करिए जहां आपके इमोशंस इंपैक्ट हो सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति समझदार नहीं है सामने वाला, तो आप उससे डिस्कशन मत करिए। वो कुछ ऐसा बोल देगा कि आप हर्ट हो जाएंगे, तो आपका एक हफ्ता खराब हो जाएगा। तो आपको रिजर्व रहने की जरूरत है। आप वहां मत बातचीत करो जहां आप कंफर्टेबल नहीं हो। है ना? पीसफुल माइंड रहने की जरूरत है। और पूरा अगर डेडिकेशन के साथ जो लोग प्रिपरेशन करेंगे, हर टाइम अपना यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए 1 ईयर मुझे लगता है बहुत सफिशिएंट है। ठीक है? और अपॉर्चुनिटीज का ये दौर है दोस्तों, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। एक दौर इंडिया में वो भी हुआ करता था जब लोग प्रिपरेशन बहुत करते थे और वैकेंसीज नहीं आती थी। आज से 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैकेंसीज नहीं आती थी, और बच्चे 10-10 साल, 8-8 साल तैयारी करके निकले, एक एक दो दो वैकेंसी उनको मिली। और वो नहीं पास हो पाए तो नहीं पास हो पाए, और जो पास हो गए वो हो गए। हमारे आपके दौर में अब ये समस्या नहीं है। अभी वैकेंसीज आपको बहुत मिलेगी, ये अवसर की दुनिया है ना? देयर आर अपॉर्चुनिटीज, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। सो यू जस्ट ओनली नीड टू ग्रैब। ठीक है? So thank you so much. This is all from my Sure. side today. Yes. Sir, I was actually asking that I'm willing to prepare for West Bengal.
And Mhm. as you said, that regional language is very important, and for West Bengal, Bengali is very important. And I'm from an English medium background from the very childhood. So should I start reading the Bare Acts in Bengali language from now? No, not Bare Act, but only the literature part. You should be able to understand the Bengali language and the script. If anything is written in the newspaper in the Bengali language, you must be able to understand and interpret that what actually it has been written. You need not to read the Bare Act in Bengali language. The examination, you would be appearing in the English medium only. And all the legal requirements, legal papers, question papers, these all you will get in English medium. Objective preparation of preliminary examination, that you will get very easily to do in English medium. When you will reach in interview, they will be checking up the whether you are able to understand the Bengali written language, whether you are able to write the Bengali language, and whether you are able to communicate by using the Bengali language. These are the essential. Read, write, speak of Bengali language status must be with you if you aspire to become judicial officer in West Bengal. Did you get my point? Yes, sir. Does that include the legal mechanical terms also? Not so much, only to that extent when you expect that a party comes to the court and he or she writes the complaint and plaint in Bengali language. So only to that extent you must be able to understand. Because all the local courts generally functions in the local language only. If you go to the southern part of the India, all the local courts will be functioning in southern languages only. If you go in Bengal, you must know the Bengali. If you go in Odisha, you must know Odia. If you go in Maharashtra, you must know Marathi. है ना? So this the local functioning of the courts involves the local language only, and therefore the total petitions and all kinds of applications will come before you as a judicial officer to decide. All will be in Bengali language. So they just check it up whether you are able to understand the Bengali language. So I hope you have lived in Kolkata. Sir, I am from Kolkata. That's great. So you must be from Bengali speaking family. Yes, sir. My mother tongue is Bengali. Perfect. And can you read the Bengali newspaper and understand it properly? Yes, sir, I can, but I think that it will be a little bit problematic for me for the big words and subjective words. Those you can use the English feelers. There is no problem. Suppose if you are speaking on some points relating to civil laws and you are using the words like plaint, written statement, counters, joinders, misjoinders, these terms you can use in English. But the communication part must be in Bengali. You must be able to do that. Okay, thank you, sir. That is enough. And mind you, suppose if 100 questions are there in preliminary examination, if you are able to do 50 questions, you will just crack it. If you are securing 45-47% in the mains examination, you will just crack the exam. So it is very easy to qualify West Bengal. I have been appeared in the interview of West Bengal Judicial Service as well. So I will just let you know the things. Let the course be started. We will guide you. Okay. Okay, sir. Thank you so much. Okay, friends. So I think we should end up here, and we will be going ahead with the planned schedule. And anything that you require, any help that you need from me, you just can approach. There is no problem at all. I will be meeting you in some of the classes. And apart from that, the administrator would provide you the contact if necessary. I hope I have been able to frame a basic diagram of preparation before you, and this will help all my young friends. And may you achieve great career. Thank you so much. All the best. Professor Amresh sir, should we close it up, or do you have anything to say? So I think it's too late to say. We'll start another session tomorrow.
And Great, great. all the best to students. We'll see you tomorrow with the procedural and technical parts of Into Legal World, that how to proceed with smart notes, how notes are aligned with your short-term goals and long-term goals. And we'll also work on slow learner and quick learner. There's so much things to do. We'll see you tomorrow, and thereafter we'll keep on, pinging you. Thank you, I am sir. sorry if I have utilized more time. No, no, that's okay. That was required. So your insight was very much required. I believe that it will help students, and we have 20 students enrolled, and believe that 20 will be judicial officer next coming 1 or 2 year, and it will be great prestige for us also, that we'll be having good number of judicial aspirants from into legal world itself. Thank you so much. Thank Thank you. All right. Good night, everyone.